तो वेलकम टू द पार्ट 2 गाइज एंड वो सारी सीरियस कॉन्वर्सेशन हो गई. दैट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन टू हैव. ग्रेट आई वुड से. अब हम बात करेंगे साइलेंस के बारे में. 1 या 2? बोथ. अच्छा, ठीक है. ठीक. तो पहली बात, हाउ डिड यू गेट दैट रोल ऑफ अमित चौहान एट फर्स्ट प्लेस? मेरी एक जूनियर है विस्लिंग वुड से, उनका नाम है तान्या देवहंस. शी इज़ किरण देवहंस डॉटर. किरण देवहंस जो लेजेंडरी कैमरामैन है, बड़ी बड़ी फिल्में शूट की हैं उन्होंने, वो साइलेंस के प्रोड्यूसर भी हैं. तो तान्या रियली वांटेड मी फॉर दिस पार्ट. तो शी सेड, साहिल यू हैव टू डू दिस. दैट्स हाउ आई गॉट द रोल. मतलब मुझे लकीली मुझे कोई ऑडिशन नहीं देना पड़ा. दे ऑलरेडी बिलीव्ड इन व्हाट आई कुड डू. तो दैट्स हाउ आई गॉट पार्ट 1. पार्ट 2 तो फिर ऑब्वियसली जब आप 1 में हो तो फिर सेकंड तो करना ही है आपको. वो फंडा था. And I really enjoyed playing Amit Chauhan. No, I would be when I watch the film, no, और जो भी मैंने realize किया, I'll be very straight up about that. I felt like people say कि it's very important how you play the character. No matter like you mentioned, no matter how good or bad actor you are, Yeah. it totally depends on the final output that you give. Yeah. Right. But for that final output to be very good, everything that is done beforehand, be it dialogue writing, be it script writing, I felt there was something which I felt was missing with the writing of Silence. That is a question for Aban Devhans, the director of the film. I can't tell you. I think वो आपको एक बबल से निकलने नहीं देता as an actor when you're playing a character. यार वो रिस्ट्रिक्शन हर कैरेक्टर के साथ होती है. I mean, आप which is the one character that I've played that you feel is complete? हाँ, लगता है कि हाँ और डिस्कवरीज हो सकती थी. Exactly. And it's not just with me, it's with every actor. There's always something that you feel is missing, and that's the beauty of a character. Human beings are not complete. We are all flawed. हाँ, हम perfect नहीं है तो फिर characters कैसे perfect हो सकते हैं? You can't always have a well-rounded, complete character. If you ask me, is Amit Chauhan a good cop? I don't know. Maybe he didn't even deserve to be a policeman Because of the mistakes that he made. because of the mistakes he makes. But by the time Silence 2 happens, Amit Chauhan has become quite a mature policeman. Because वो इंस्पेक्टर अविनाश के साथ काफी काम कर चुका है and he understands how Avinash sir functions. तो you see that transition, you see that. मोटली के साथ भी जब मैंने पहला प्ले किया था तो बड़ी डांट खाई थी because I didn't know the ways of the world. But today, the story is completely different. I'm a respected actor. I'm a valued member of my theatre company. ऐसे ही होता है. You grow with life teaches you, na. And what's best about Silence 1 and 2 and the transition that I've had as Amit Chauhan is it's a proper depiction of who I am as a person. Ki, while we were shooting 1, I was this ignorant, playful person who probably wasn't a very good policeman. But he was a good man. But utna sure tha. He continues to be a good man in Silence 2. Hopefully, he'll continue to be a good man in Silence 3. So Silence 3 is coming. Oh, Are you going to use niche hair in that as well? I don't know. पारुल, तू नहीं भी होती है तो तेरा निशहर आ जाता है हर जगह. क्या चक्कर है ये? पारुल जी, आप निश hair मत लाइए, लेकिन आप आ जाइए इस पॉडकास्ट आप आ जाइए, है ना. ले, तेरा यहाँ भी प्रमोशन कर दिया मालकिन. एक चीज और है जो आई थिंक व्हेन आई सेड अबाउट राइटिंग एंड देन यू सेड कि डिस्कवरी, आपको लगता है कि हाँ और डिस्कवर हो सकता है. इट्स विथ एवरी कैरेक्टर Always. So even when I was talking to Devashish Makhija about writing, because he writes, he directs,
एंड ही डजंट थिंक कि मतलब इनको ही थिंक्स कि इफ यू आर द राइटर यू आर सपोज टू बी द डायरेक्टर एज वेल. मतलब It's always better. हाँ, It's it's a always subjective better. choice as well. No, it's always better. Hmm. If you've written something, you lived that story so much. इसलिए मुझे वो एक्टर नहीं पसंद आते जो बोलते हैं कि आई डोंट थिंक मेरा कैरेक्टर. अरे यार, तुमको 2 दिन पहले स्क्रिप्ट मिली है. Hmm. द राइटर्स लिव्ड विद द स्क्रिप्ट फॉर years probably. कई रातें उस राइटर ने बैठ के उस स्क्रिप्ट में डाली हैं. उसने 25 बार सोचा होगा एक डायलॉग लिखने से पहले, 25 बार सोचा होगा एक स्क्रीन प्ले एलिमेंट लिखने के लिए. और एक्टर आते हैं, कहते हैं यार ये आई डोंट थिंक माई कैरेक्टर वुड डू दिस. यू डोंट हैव द राइट टू डू दैट. इट्स द राइटर स्लैश डायरेक्टर और द राइटर एंड द डायरेक्टर्स कॉल. बट ऑल्सो डू यू थिंक कि एक कैरेक्टर की ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरी तब हो सकती है कि जब कास्टिंग पहले हो गई हो एंड देन द डायलॉग राइटिंग इज डन? No. I've been a part of both processes. बद्रीनाथ की दुल्हनिया में सोमदेव was written for me. I was told this later, that character was written based upon me as an actor. एक वो process था. But then there are other films which I've done where they've written the part and they've cast me later because some other actor is not available, or they've just realized that, oh, Sahil will be good for this part. In both the cases, discovery never stops. You're a traveler. Are you a traveler? Whenever I get a chance. Whenever you get a chance. You have a destination in mind and you set out, right? You discover a place. You discover the rasta. How can you say that this is the last journey you're a part of? So you have to have an end point, right? A journey is not over unless there is a full stop, unless there is an end point. आप डिस्कवर करते रहना चाहते हो तो फिर डिस्कवरी की तो कोई लिमिट ही नहीं है, राइट? एवरी कैरेक्टर, एवरी स्टोरी हैज टू हैव अ वेरी गुड इफेक्टिव एंड. If it does not have an end, it's not a story. I kind of have a different take to that. I think I'll connect this with 2 films, Black Friday and Devdi. ठीक है. Devdi में end में होता है, and people those who haven't watched it, that's your fault. I'm going to give the spoilers. So Devdi में end में both Kalki and Abhay Deol, both of them are on the bike, and once like that is the last scene, okay. एंड जब वो खत्म होता है मेरे अंदर एक तो आता है गुस्सा, अरे यार अनुराग भाई देयर वाज मोर स्कोप, क्यों आपने आगे नहीं लिखे सीन? एंड देन आई रियलाइज्ड कि भाई देखो जो भी चीज़ें हुई हैं फिल्म के दौरान, उसके बाद क्या होना है, यू नो दैट गाय हैज किल्ड अराउंड 7 पीपल and he has to go to the jail. That process would happen, but this film was more like the realization that needs to happen for that character. Same happened with Black Friday. अब आप एथिक्स पे उतर आए हो. Okay. हम बात करें कहानी की, लेकिन ये कहानी एंड नहीं हुई ना. आप समझ ही नहीं रहे. ओके. कहानी के एंड से मेरा ये मतलब नहीं है कि इसका एक कंक्लूजन निकल गया. कई कहानियां हमारी लाइफ में होती हैं जिसका कोई कंक्लूजन ही नहीं होता. A conclusion doesn't decide that you stop discovery. No. Right? You stop discovery when you've effectively told a story. The end doesn't have to be a happy end or a positive end or a tragic end, जैसा शेक्सपियर के काफी सारे नाटकों में है. But you stop discovering at a point so that execution can begin. If you don't stop discovering, you can discover as much as you want as you go along. But there is a point where you have to stop discovering and start executing. You have to tell the story also, na? अब हमारे पास एक limited medium है. It's a film. Yeah. It's a trap that a lot of filmmakers have considered artistic. मेरा नाम जोकर कितने घंटे की फिल्म थी? 4 घंटे के आसपास की है. Do you think 4 घंटे 8-9 मिनट आई थिंक. Do you think each and every minute of that film is you think he discovered everything? No. 4 घंटे 4.5 घंटे की फिल्म. ऐसे तो 5 घंटे की थी.
तो मतलब डिस्कवरी और पॉसिबल थी ना. Hmm. Would you not say that the film should have been shorter? As a film buff, I want to watch such films, but if I only see it as an audience perspective, I would say कि यार छोटी करो, Why? because it's more like an experience for those people, Exactly. more like discover new things, but Exactly. not like they don't want to take a lot of time. There are film directors who we've learnt cinema from, like Tarkovsky and Kichlowski and stuff. They have had long 11-minute shots, and there have been lambe one takes. A lot of people call them slow and boring, but you have to understand that there is a certain Kind of thinking and process. and process. Yeah. They have a way to tell the story, and they want to do it that way, and that's why these films are some of the films that we learn from, right? You can never say that they discovered everything about everything. There are certain things that they left out for audience perception, for people to come up with आप क्यों ऑडियंस को स्पून फीड करना चाहते हो कि अभय देओल हीरो है या विलन है, या व्हाई डू यू वांट टू टेल द ऑडियंस कि मैं ये सोचता हूं? उनको सोचने दो ना. आपने डिस्कवर कर लिया, आपने एक ओपिनियन बना लिया, आप अपना ओपिनियन ऑडियंस पे थोप नहीं सकते ना कि मेरा कैरेक्टर ऐसा है. ऑडियंस को डिसाइड. आपने बहुत सही बात बोली, आपने बोला कि इतने बंदों को मार के आया है, ये है वो, तो उसको एक प्रोसेस होना चाहिए था. दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेलिंग अ स्टोरी. क्लिफ हैंगर ही समझ लो इसको एक तरीके से, कि आपने पूरी कहानी नहीं सुनाई. यहाँ पे क्लिफ हैंगर इसलिए है क्योंकि आप समझ सको, ना कि आप दूसरे सीजन आप के लिए समझो वेट ना, कर सको. आपके मन में जो आ रहा है आप डिसाइड कर लो. अरेबियन नाइट्स की 1001 कहानियां जो हैं, वो एक कहानी के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. आपको पता है वो कहानी क्या है? एक कहानी जिसके जरिए वो जुड़ी हुई है. तो एक राजा था. It's up to us as well. हाँ, It's up to us as well. अप टू अस इज वेल. एक राजा था जो लड़कियों से शादी करता था और सुहागरात पे उनको मार डालता था. तो एक मच्योर पढ़ी लिखी लड़की आई, उसने बोला कि मैं करूंगी इससे शादी, और उसने उसको एक रात सुहागरात वाले दिन कहानी सुनानी शुरू की राजा को. और वो कहानी पूरी नहीं करती थी. वो भीख मांगता रहता था. कहता था आगे क्या हुआ? कहती है सुबह हो गई, सो जाओ, रात को सुनाऊंगी आगे. और उस रीजन से वो उसको मारता नहीं था कि ये मुझे एंड नहीं बताएगी. अगली रात को उससे कंटिन्यू करती हुई अगली कहानी शुरू हो जाती थी, फिर अगली कहानी शुरू हो जाती थी, फिर अगली कहानी. 1001 रात तक, अलिफ लैला जिसे कहते हैं, 1001 रात तक वो औरत अपने पति को कहानियां सुनाती रही. 3.5 साल हो गए. हाँ. अब जब वो कहानियां खत्म हुई, तब तक उसे प्यार हो चुका था उससे. तो कहानी को ना खत्म करने का और डिस्कवरी को रोक देने का अपना अलग मजा है. टू ओपन इट अप फॉर पीपल हु आर वाचिंग, टू ओपन इट अप टू पीपल हु वांट टू हैव अ पर्सपेक्टिव. आप सब कुछ बता दोगे ऑडियंस को तो फिर मजा क्या है? बात सब टेक्स्ट की आती है. आप सब कुछ दे दो तो फिर ऑडियंस को क्या मजा आएगा डिकोड करने में? ऑडियंस सोचेगी हाँ ठीक है, सब कुछ अवेलेबल था. लेट द ऑडियंस बी एट द एज ऑफ देयर सीट, ऐसे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे ऐसे थोड़ी होता है. हाँ, अगर आप ज्यादा अवेलेबल कर दोगे तो फिर ये होगा बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल. एग्जैक्टली. और ऑडियंस जब तक ये नहीं बोलती कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये तो गलत है, या फिर ऑडियंस बोले हाँ ये सही है, ऐसे ही होना चाहिए था, इसका मतलब आपका ऑडियंस के साथ एक कैथार्टिक कनेक्शन बन गया है एंड यू सक्सीडेड इन टेलिंग अ स्टोरी. तो नहीं, discover as much as you want, but you have to be smart enough to give the audience only as much as required. वो तड़का लगना जरूरी है. वो हर बार लगना जरूरी है. आप बोलो नमक में खाने में नमक कम था, कोई बोलेगा नहीं नमक बिल्कुल ठीक था.
कोई बोलेगा फीका लग रहा है, आप किसकी सुनोगे? ऐसी बनानी जरूरी है जो सब जिससे सेटिस्फाइड हो, कि नहीं? सेटिस्फाई तो कोई कभी होगा भी नहीं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस. हम्म हाँ, एक कहानी या फिल्म या नाटक या तो एंटरटेन कर सकता है, या एक मैसेज दे सकता है, या एक सवाल खड़ा कर सकता है, या तीनों चीजें कर सकता है एक साथ. नसीर सर एक बात बोल के गए एक इंटरव्यू में कि अगर मुझे किसी को मैसेज देना होता तो मैं चिट्ठियां लिख देता ना सबको, फिल्म क्यों बनाता? अगर मुझे एंटरटेन करना होता तो मैं सर्कस करवा लेता, रैम्बो सर्कस टाइप. या अगर मुझे सवाल खड़ा करना होता तो मैं स्ट्रीट प्ले कर देता, हम्म या एक न्यूज़ वाली इंटरेक्शन में जाके खुलेआम एक सवाल पूछ लेता लोगों से जो उनको सोचने पे मजबूर कर दे. देयर हैज टू बी अ राइट बैलेंस ऑफ ईदर टू थिंग्स और थ्री और वन. और वही तो ब्यूटी है. कहानी लिख के फिल्म बनाना तो सब कर लेंगे. To make the audience engrossed and people a part of your own process, that is what I believe is something that every creative individual needs to achieve. I'm not that established or that big a person to make a statement of this stature, but as an audience member, I've watched so much that whenever I've been left wanting for more, I've realized that I've really enjoyed watching what I have. मैंने बोला बे खत्म हो गए और देखनी थी. It's that right amount of showing or explaining where you're like, but I wanted to see more. A part of which why all of these Marvel films have done so well. And now they're not doing any better because they've surpassed their conclusion and now they're trying to recreate the magic that can't take place. can't take place. Now they're somehow trying to, उन्होंने अपनी कैश काओ को स्पेंड कर दिया है. Yeah. तो डिस्कवर, उन्होंने सब कुछ डिस्कवर कर लिया. डिस्कवरी की बात हो रही थी ना. These guys have discovered everything, every possibility, every. अब the magic's over. The magic is done. That's the problem with 100% discovery. Same goes with Tarak Mehta. Same goes with Tarak Mehta. सब देख लिया. There's nothing you can do more. Although there is no limit to discovery, but there is a saturation point. There is a saturation point. Consumption has a saturation point. You can't keep watching one thing. यहाँ पे legendary directors have reached their saturation point. हम सोचते हैं ये लोग रिटायर क्यों हो गए? इतनी अच्छी फिल्में तो बनाते थे. Why are they not making more cinema? Because they're not inspired anymore. Because they've realized that they've made, उनको ऐसा लगता है they've made everything. आपको भले लग सकता है कि they still have a lot to give, but उनको लगता है कि मैं और नहीं बना सकता भाई. So they've stopped their discovery. They've stopped their attempt at going further, exploring more. Let's say when I want to talk about your theater experience. Okay, so I want to know how did it start, especially when you came to Mumbai and you became a part of Motley. And for the audience, for the viewers, like at first, इनको बताइए आप what is Motley at first. Motley is a beautiful theatre company which I work for. It's run by Mr. Nasiruddin Shah. And I've been working for Motley for the past 16, 17 years of my life. And I think I would attribute most of my professional theatre career to Motley because they do plays and they do them beautifully, how theatre is supposed to be done. I have 27, 28 years of theatre behind me.
I started in 1997 when I was 10 or 11 years old. I started with amateur theatre in school. And then I was suddenly picked up by this amazing director, Mr. Ajay Manchanda. He's the guy who I did most of my theatre with. I credit him for turning me into a normal person, turning me from a normal person into an actor. He's the one who saw something in me and kept casting me in his place. And it was because of what he gave me, I had the courage to even attempt to come to Mumbai and train myself as an actor and move on to doing theatre with Naseesa. So, तो ये हम्टी शर्मा के बाद आप मोटले के पार्ट बने, na, उसके पहले ही? much before 2009, I had my first opportunity with Motley. Hamti Sharma 2014 में आई. In fact, I started doing theatre because I felt accepted there. When I was studying in Tamil Nadu, I would go to school and I was the fairest kid in class. All of those Tamil children would call me Vellakaran. Vellakaran means white boy. बच्चे थे, you know, and they had this anger towards the British. A lot of patriotism. तो वो मेरे को वेल्लकारें बोलते थे. They didn't really accept me as much as they should have or would have. ठीक है. धीरे धीरे they also got used to me. They used to call me वेल्लकारें. फिर जब हम दिल्ली आए 95 में we decided to move to Delhi. 97 I joined school in Delhi. They started calling me Madrasi in Delhi. क्योंकि मेरा हिंदी बोलने का जो तरीका था ना वो बिल्कुल ऐसा उसका था. एक्सेंट बदल गया था. मैं बचपन से ही हिंदी बोलता था लेकिन मेरा हिंदी बोलने का स्टाइल ऐसा था. I know I'm not offending anyone because there are a lot of North Indians who've grown up in Tamil Nadu. My own cousins, मेरे चाचा के जो बच्चे हैं वो अभी भी ऐसे ही बात करते हैं. और बड़ा मुश्किल है यार एक बच्चे के लिए जो छठी क्लास में दिल्ली में पढ़ना शुरू हुआ है वहाँ पे वो मद्रासी बोल रहे हैं. मैं छठी क्लास में निक्कर पहन के चला गया वहाँ पे तो छठी क्लास में ऑलरेडी पैंट वैंट पहनने लग गए थे. बड़ी बेइज्जती हुई. छोटी छोटी बातें. तमिलनाडु में हम टीचर को मिस बुलाया करते थे, उधर मैम बुलाया जा रहा है. मैंने किसी को मिस बोल दिया तो टीचर बुरा मान गई, बोलती मैं शादीशुदा हूँ, मेरे को मिस काहे बोल रहा है. क्लास 6 में बच्चे के बाद से बुरा मान गए. हमको क्या अकल भाई, हमको बचपन में सिखाया गया टीचर को मिस बोलते हैं तो हम मिस बोल रहे हैं. तो बड़ा एक्सेप्टेंस का बड़ा प्रॉब्लम हुआ. बट फिर एक दिन बोले कि नीचे एक्टिविटी रूम में जिनको थिएटर करना है, जिनको प्ले करने का इंटरेस्ट है, स्कूल के बाद पहुंच जाना. अटेंटिव था नहीं मैं. मैं खोया हुआ सा था. मुझे लगा जाना कंपलसरी है. बोल के गए कि स्कूल के बाद जो है एक्टिविटी रूम में जाना है. हम चले गए. हाँ, हम देख रहे हैं 40 साल का आदमी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है. फॉलो द लीडर टाइप कोई एक्सरसाइज चल रही है और सब बच्चे पंक्तियां कर रहे हैं. मैंने कहा ये सही है यार, मजा आएगा. मैं भी करना शुरू हो गया. मैं भी भीड़ में घुस गया. फिर अचानक रूल समझ में नहीं आए हुए थे. ऐसे एक दूसरे को ऐसे टच करते थे तो वो लीडर बन जाता था. मेरे को टच कर दिया. मैं कहा मैं कुछ भी करूं. कहते हाँ कुछ भी करो. करे पंक्तियां, सब लोग फॉलो कर रहे हैं. बड़ा मजा आया. मैं कहा यहाँ तो कोई नहीं बोल रहा वेल्लकार है मद्रासी, कोई कुछ नहीं कह रहा. वो नाटक बना रहे थे कॉल्ड हिंदुस्तान हमारा. So that was a real that's where you realize कि यार यहाँ पे एक्सेप्टेंस है. यहाँ पे एक्सेप्टेंस है. हिंदुस्तान हमारा जो कि उर्दू नाटक था और मैं हिंदी बोलने में भी स्ट्रगल कर रहा था और मेरे को ये लोग ने नरेटर का रोल दे दिया. अभी नरेटर के रोल में उर्दू वर्ड्स हैं. मैं लिख के रट्टे मार के गया. बड़ा मजा आया. द फर्स्ट टाइम आई वाज अबाउट टू गो ऑन स्टेज, मैं विंग्स में था. I did my first play in this auditorium in Delhi called Air Force Auditorium, धौला कुआं में है. तो जो डायरेक्टर्स असिस्टेंट था उस टाइम पे, इरशाद नाम था उसका. I still remember the conversation I had with him. I said, भैया
डर लग रहा, मेरे घुटने कांप रहे थे यार, ठंडा हो गया था मैं ऊपर से नीचे तक। पहली बार तो मैं एसी में था, मतलब एसी एक्सपीरियंस नहीं किया था लाइफ में कभी। मैं तमिलनाडु से आया हुआ, वहाँ पर ठंड इतनी, मुझे लग रहा भाई तो सारे लोग बैठे हैं। ही हेल्ड माई शोल्डर्स एंड ही सेड, डरना नहीं है, सब अच्छा होगा, चिंता मत कर, जा। वो जैसे थिएटर में मोटिवेट करते हुए। मैं गया, ऐसा पीछे थोड़ा कुछ ऐसा लगता है ना कि टाइट हो गया। I did my scene and I came out. I remember that feeling. मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता. I'll perform it for you. It was like, बे मजा आ गया यार, दोबारा कब जा रहे हैं स्टेज पे हम लोग? नाइस. क्या फीलिंग है, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग पागल हो गए, ये तो दोबारा करना है. लकीली आई हैड अ कपल ऑफ मोर सीन्स. उसके बाद तो मैं भाग भाग के स्टेज पे जाता था. मेरी बारी आ गई, मेरी एंट्री आ गई. फिर इतने भोले थे, 1 डेढ़ 2 महीने से हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं. शो करते वक्त रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये तो खत्म हो जाएगा आज. मैं बड़ा खुश, नाटक खत्म हुआ. ये देखा 2-3 बच्चे रो रहे हैं. मगर रो क्यों रो, क्या हो गया? कल वर्कशॉप नहीं है. हमने कहा ओह शिट, ये तो सही बोल रहे हैं, ये तो खत्म हो गया यार. जब आप भी रोने लगे. बहुत दबा के. मैं तो, मेरी माँ मुझे याद दिलाती, कहती तू कंबल वंबल ओढ़ के ऐसे रो रहा था. सब खत्म हो गया, कोई मिलेगा नहीं. छोटा सा बच्चा. ये अगले साल फिर आ गए, कह रहे नाटक हो रहा है. मैंने कहा बैग उठाओ चलो भाई, ये एक्सपीरियंस दोबारा चाहिए. फिर तो भाई नशा हो गया. मैं कहा ये दोबारा करना है. फिर वो स्कूल वालों ने कोई रूल बना दिया कि पिछले साल जिन बच्चों ने नाटक किया था वो इस साल नहीं करेंगे. मैं कहा ये नहीं चलेगा यार, अब आई वॉन्ट टू डू दिस. मैंने जाके अजय सर को बोला, मैंने कहा सर ये तो गलत बात है सर. वो चाय का आना, वो रिफ्रेशमेंट्स का आना, वो छोटी बातें जो थिएटर में होती हैं वो अच्छी लगने लग गई थी यार, चाहिए था मुझे. तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, स्कूल वाले नहीं करने देंगे, मैं बाहर एक और नाटक कर रहा हूँ, वो करो. ये वही थे जो वर्कशॉप लेने आए थे. हाँ, जो वही थे जो वर्कशॉप लेने आए थे. ये वही हैं जो ओरिजिनल डिजाइनर थे अली बाबा एंड 40 थीव्स के, जिनका नाम पोस्टर पे भी है. मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनका नाम हमेशा जाता है हर जगह. मतलब हालांकि इस प्रोसेस में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, बट ही इज एन इंस्पिरेशन, सो हिज नेम इज ऑलवेज देयर. तो बाहर नाटक हो रहा है, आ जाओ. मैंने घर जाके बोला, मैंने कहा अम्मा बुला रहे हैं. मुझे कहती कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो. वो आदमी अपना स्कूटर लेके हमारे घर पहुंच गया भाई. Why? Because you were so excited. I was so excited and my parents said no. Because my parents were scared कि ये बच्चा साला अभी आया है तमिलनाडु से, पढ़ाई में कुछ अता पता है नहीं, ये पता नहीं कौन सी नाटक कंपनी में घुसे जा रहा है. हर माँ बाप का सपना होता है पढ़ लिख के. This was 1997. 1997, आफ्टर 97. दिस वाज 1998. अगले साल का प्ले, अंधेर नगरी चौपट राजा. तो वो घर आ गए, मैं चड्डी पहन के गिल्ली डंडा खेल रहा हूँ. ये पहुंच गए पठानी सूट और एक बजाज चेतक लेके. इन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि आप गलत कर रहे हो, आपका बच्चा बहुत एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके, यू शुड नॉट स्टॉप हिम, ही इज़ वेरी टैलेंटेड. कुछ देखा होगा. आई ओ इट टू हिम फॉर कन्विंसिंग माई पेरेंट्स. हालांकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं. तो मेरे पेरेंट्स डरे हुए थे यार, कल्चरल शॉक में थे उनके दोनों बच्चे, मैं और मेरा छोटा भाई. फिर मैंने वो नाटक किया. वो स्कूल का नाटक नहीं था, वो बाहर का नाटक था, लेकिन उसकी रिहर्सल स्कूल में ही होती थी. तो स्कूल वाले नाटक की रिहर्सल के बाद हमारे नाटक की रिहर्सल होती थी. इट वाज सो मच फन. और वो 1997 से लेके आज 2024 है, ऐसा कोई साल नहीं गया मैंने नाटक ना किया हो. मुझे आज भी, गलत वर्ड्स यूज़ करूँगा क्योंकि गलत वर्ड्स किसी चीज़, किसी फीलिंग को समझाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं. मुझे चस्के आते हैं, मुझे नशा आता है थिएटर करके यार. मैं तो यार
एक बार किसी को कह भी दिया था कि अगर थिएटर से इनफ पर्याप्त मात्रा में पैसा कमाने को मिल जाए मैं कुछ और करूँ ही ना. इट्स सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग. हालांकि मेरे को जितने लोग जानते हैं उनको नहीं पता कि मैं थिएटर को लेके इतना पैशनेट हूँ. उनको इतना पता है कि मैं एक्टिंग को लेके पैशनेट हूँ. बट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट थिएटर, एवरीथिंग अबाउट थिएटर. प्लेटफॉर्म उठाने से लेके, साउंड डिजाइन करने से लेके, डायरेक्टिंग अ प्ले, टू डूइंग लाइट्स, टू मेकअप, टू यू नेम इट, सेट डिजाइन. अभी क्या क्या डेट है आज? 9 तारीख है. 5 दिन पहले आई डेब्यूड इन पृथ्वी थिएटर एज अ डायरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम. आई एम 37 ईयर्स ओल्ड. ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मैं लाइफ में लेट हो गया. बट मैंने सोचा अब इतनी लेट कर रहा हूँ तो आई वांट टू गिव द ऑडियंस समथिंग स्पेशल. आई डिड अ प्ले कॉल्ड अली बाबा एंड 40 थीव्स. आई डिजाइंड इट. मेरे को मेरा सेट डिजाइनर बोल रहा है, साहिल व्हाई यू स्पेंडिंग सो मच मनी? आई सेड जस्ट डू इट. उसने बोला क्यों? हालांकि मैं बहुत इमोशनल हूँ अपने काम को लेके. आई सेड डैन धनेंद्र कावड़े, legendary set designer, legendary theater person. He agreed to design a first time director's set. मैं बोला डैन मुझे आसमान में छेद करना है. मैं 28 साल से थिएटर कर रहा हूँ, मैंने आज तक नाटक डायरेक्ट नहीं किया यार. I'll share videos with you. The moment that डाकुओं का सरदार ने बोला खुल जा सिम सिम और वो गुफा खुली है ना, the audience, the way they've cheered. He was there in the audience. Yes. वो जो ऑडियंस की जो ऑडियंस के चेहरे बन गए थे ना, वो ऐसे बन गए थे. ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं था. पत्थर का दरवाजा खुल रहा है, पीछे से लाइट है. इट्स जस्ट एन इफेक्ट दैट वी हैव क्रिएटेड. बट द मोमेंट दैट चीयर केम, मैंने पृथ्वी के साउंड डेस्क पे मैं साउंड पे था. आई वॉज ऑपरेटिंग साउंड. मैंने पृथ्वी के डेस्क पे कम से कम 10 बार हाथ बजाया होगा. मैंने कहा दिस इज व्हाट आई डिड दिस फॉर. एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस फीलिंग इज इररिप्लेसेबल. और ये उसी मोमेंट के लिए होती है. मेरा पहला नाटक हो चुका, अब मेरा पहला नाटक दोबारा नहीं होगा. राइट? अब मुझे आई हैव टू do more better or any. I want people to be like कि अगर साहिल का प्ले है तो कुछ तो खास होगा, कुछ तो खुलेगा कहीं से. I would love that stereotype. I would love that typecast कि अगर साहिल का नाटक हो रहा है तो मतलब कुछ तो कांड होने वाला है स्टेज पे, और वो होगा. My play ended with, जैसे मार्वल की फिल्म्स खत्म होती हैं एक पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस की तरह, I ended it with a sequel. I opened it up to a sequel. जैसे अरेबियन नाइट्स की कहानियां जुड़ी हुई हैं, I connected Ali Baba with Aladdin. And I'm writing Aladdin now. So my purpose was to give the audience an experience that they would remember for a long time. People actually came up to me and told me कि हमने 10 साल में पृथ्वी में ऐसा नाटक होते हुए नहीं देखा. I wanted to create something between commercial theatre and experimental theatre. I did not want to go completely commercial with it, but I did not want to come down to the level of कि पैसा बचा के चलो isolated, cornered, limited resources वाला थे. ना, higher than that, lower than commercial. मैं नहीं चाहता था कि कोई बाहर जाके बोले कि अरे थिएटर थोड़ी था, लाइट एंड साउंड शो था. ना, ये थिएटर ही था. मजा आया. इंटरेस्टिंग. या ओके. सो आप, ये फिल्मों के बारे में बात हुई, थिएटर के बारे में बात हुई, अब हम बात करेंगे आपके वॉइस ओवर. अरे रोजी रोटी पे आ गए थे. ये वॉइस ओवर का चस्का क्या है आपको? अरे बहुत मजा आता है मुझे वॉइस ओवर ये करके. लगा कैसे? झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बहुत गरीब था. मैं फिल्म स्कूल में पढ़ रहा था और मेरे पास हद से हद, मेरे पास 1500 रुपये होते तो मैं सोचता था कि पूरा शहर अपना है,
मैं सोचता था कि 1500 रुपये डूड बहुत पैसा है। 2007-2008 की बात है। मेरा सीनियर था एक जीवक मुंगतोड़े, वो एक कॉर्पोरेट फिल्म बना रहे थे एशियन पेंट्स के लिए, कोई कॉर्पोरेट फिल्म थी। उन्होंने बोला कि गुरु वॉइस ओवर करेगा। मैंने कहा वो क्या होता है? कह रहे वो पीछे से जो आवाज़ आती है वो नरेशन का नरेशन काइंड्स की, कोई इंटरनल कोई उनकी। मैं कहा ठीक है, कैसे बोलना है? ऐसे बोलना है जैसे टीवी पे कोई आदमी बोल रहा हो। मैं कहा, हाँ हाँ, उसकी एक्टिंग तो मैं करता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। मैं ब्रेड पकोड़ा खा के स्प्राइट पी के वॉइस ओवर करने चला गया, आवाज़ निकले नहीं। करे तू कोला पी के आया ना, जो आवाज़ नहीं आ रही। मगर ठीक है, कल ट्राई करते हैं। एंड देन आई डिड दैट वॉइस ओवर द नेक्स्ट डे विथ डिसिप्लिन। भाई 3000 रुपये दे दिए उसने। मैंने कहा 3000 रुपये? मैं बैठ के हिसाब लगा रहा हूँ, होलसेल डीलर का बेटा ना। मैंने कहा यार ये साला दिन में 4-5 अगर कर लिए हम तो रहीस। और वही हुआ। People started paying me serious money for because I could speak like the man on television. And then I picked up accents. Voicing made me a better actor. Being a better actor made me a better voice actor and vice versa. वो खत्म ही नहीं हो रहा है सर्कल अब। Every project after project after project after project, I'm playing characters. मैंने कहा यार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू टेलीविजन एक्टर्स, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, बट मेरे दिमाग में किसी ने उस वक्त डाल दिया था कि टीवी पे एक्टिंग करने से ना आपका जजमेंट शुरू हो जाता है और आपका करियर ख़त्म हो जाता है। उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि ये बढ़िया है, कोई मेरे को देख तो रहा नहीं, एंड आई एम स्टिल गेटिंग पेड एंड आई एम गेटिंग अप्रिशिएटेड फॉर व्हाट आई एम डूइंग, एंड आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वेट फॉर द काइंड ऑफ वर्क दैट आई वुड प्रॉब्ली वांट टू डू। मैं कहा मुंबई में सर्वाइव करने के लिए इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। दैट आई एम डूइंग समथिंग दैट इज कंप्लीटली डाउन माई एली। मेरी ट्रेनिंग इसमें लग रही है और मेरा रियाज हो रहा है। मैं माइक पे एक्टिंग ही तो करता हूं। मैं माइक पे खड़ा होकर के whenever there's a scene, I'm actually acting. मैं दिख नहीं रहा मगर सुनाई दे रहा हूं। और एक चीज मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुई कि जिन एक्टर्स के लिए मैं डब करता हूं उनके अपने पैटर्न्स हैं, स्पीच के पैटर्न्स हैं, उनके पॉजेज अलग हैं, उनकी प्रेपरेशन अलग है, उनका परफॉर्मेंस अलग है। एंड एवरी टाइम आई वुड डब फॉर अ डिफरेंट एक्टर, आई वुड बी लिमिटेड कि मुझे उसी इंसान की तरह बोलना है, बट अपनी लैंग्वेज में। आप एज एन एक्टर ना बड़े वो हो जाते हो कि हाँ ये मेरा स्टाइल है ना। फिर जब आप डब करने लगते हो तो आपको रियलाइज होता है कि बहुत सारे स्टाइल्स पॉसिबल हैं। देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स दैट यू कैन क्रिएट। तो उन लोगों को मजबूरन फॉलो कर करके आई हैव डब्ड फॉर सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन हॉलीवुड, फ्रॉम जॉनी डेप टू ब्रैड पिट टू हुएवर यू नेम इट। बीच में कियानो रीव्स, बीच में लॉकडाउन आया था तो इन्होंने क्लासिक फिल्म्स डब करने के लिए दी थी, तो मैं आई वाज डबिंग younger versions of Al Pacino and Robert De Niro and Carlitos Way मैंने डब की, Wolf of Wall Street मैंने डब की MX Player के लिए। I dubbed for Leonardo DiCaprio. I ended up dubbing for Jack Nicholson. I ended up dubbing for these amazing actors. तो मुझे समझ में आया कि यार अब अगर कोई डायरेक्टर आके मुझे कहता है ना साहिल ऐसा चाहिए, वो मेरी वकैब में ऑलरेडी है। मैंने किया हुआ है ऐसा पार्ट। अगर एक्टिंग नहीं की है तो कम से कम डब किया हुआ है। हमको फिल्म स्कूल में सिखाया जाता था दैट यू हैव टू वॉच एज मच सिनेमा एज पॉसिबल टू हैव एन ओपिनियन। अब बैठ के फिल्में देखना, बार बार फिल्में देखना थोड़ा सा टीडियस हो जाता है एज अ फिल्म स्टूडेंट, स्पेशली जब आपका सब्जेक्ट फिल्म हो जाए। फिल्म एप्रिसिएशन में बैठ के आप सालो देख रहे हो, बर्गमन की फिल्में देख रहे हो, तो आप थोड़ा सा, बट व्हेन यू आर डबिंग यू हैव टू वॉच एवरीथिंग वेरी precisely precisely. Yeah.
You mark the pauses, you see the lip, and you try to sound like 2 मिनट के अंदर अंदर लोगों को भूल जाना चाहिए कि ये पिक्चर डब्ड है. When you do that, you are watching cinema at a different level. And believe me when I say this, that makes you an aware actor. हमटी के लिए शूट करने से पहले मैं बहुत कुछ ऑलरेडी डब कर चुका था. I had already dubbed for more than 1,000 projects before I appeared in Humpty Sharma Ki Dulhania. And I came in with that understanding of choosing the right possibility for every line. हमने बात की थी ना सबकॉन्शियस तैयारी की. ये सबकॉन्शियस तैयारी थी. मैं अब इस पॉइंट पे इस चीज को इंटेलेक्चुअलाइज कर पा रहा हूं. उस टाइम पे अगर आप मुझसे पूछते तो मैं बोलता डबिंग तो मैंने पैसे कमाने के लिए शुरू की थी, ताकि खाना आई कुड पुट फूड ऑन माई प्लेट, और कोई रीज़न नहीं था. सो दैट आई कुड पुट पेट्रोल इन माई मोटरसाइकिल, आई कुड गो टू ऑडिशंस, आई कुड बाय अ शर्ट. Very basic things. There are a lot of people who've supported me in this. There's a director called Elijah Lewis. She gave me my first theatrical release film. And she would pick up actors from the theater to come and dub for her. अब मैं ads में voice over करता हूँ thanks to her. There's a studio called Sound and Vision India, जिनके लिए मैं regularly काम करता हूँ. अब तो Netflix और Amazon का इतना सारा localization का काम है that I go and dub for. Now I started writing for them because I'm so good at catching lip sync that I write scripts which other artists follow. Family Man में I dubbed for Manoj Bhai in English as a guide track. Guide track क्या होता है कि आप एक प्रोफेशनल वॉइस एक्टर फैमिली मैन डब करके चला जाता है, फिर मनोज सर आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता. He could hear my voice and he could recreate it. Becomes easier for the artist. उनके पास टाइम नहीं है. He's a busy man, he's a big man. When I did Silence, I told him this. I said मैंने किया था ये. तो अच्छा वो तुम्हारी आवाज़ थी क्या? अरे बहुत मदद मिली यार. When Pushpa 1 came, I was the first artist to dub for Allu Arjun. My voice got replaced by Shreyas, and the studio was kind enough to say कि आप एक काम करो, केशवा के लिए डब कर दो. Okay. So all the lines that you hear are kind of the creations of the dubbing director Mr. Abul and myself. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं. तो फिर इवेंचुअली मेरा जो रिकॉर्ड किया हुआ था वो श्रेयस के लिए गाइड ट्रैक बन गया. Okay. आई वॉज पेड फॉर इट एंड ऑल, बट दुख हुआ थोड़ा सा कि अगर चला जाता, अगर रिलीज हो जाता तो 1,000 करोड़ के पीछे मेरी आवाज है. अरे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके पीछे मेरी लिखाई है या आवाज है या अनगिनत चीजें हैं. बट अब आप यू कांट रियली क्लेम एनीथिंग. लोगों को बुरा लग जाएगा. तो है मतलब वॉइसिंग इज समथिंग दैट मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो घर चले गए, नाकाम हो गए, क्योंकि उनके पास वॉइसिंग नहीं थी. आई एम वेरी लकी. I wasn't a good actor at all. I've become a good actor with so much practice. वो कुछ खराब एक्टर्स के बारे में बोला जाता है ना, लोग कहते हैं कि अब इतनी फिल्में कर चुका है, अब नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा. मेरे साथ भी ऐसे ही है. मैंने इतना सारा काम कर लिया ना कि अब कोई कहे ना कि साहिल इसमें बुरी एक्टिंग करनी है तो बहुत मेहनत लगेगी. I'll have to really sit down and try to choose the worst possibilities to. I would like to play a bad actor once. I would like to do a role of a bad actor. कि एक पिक्चर में खराब एक्टर है, वो बड़ा मजा आएगा. कि आरके की फिल्म साइन कर लो सर. नहीं आप समझ नहीं रहे. मतलब a good film. हाँ, with where I'm playing an actor who doesn't know how to act. Okay. Yeah. तो कोई एक एग्जाम्पल, जैसे आप जॉन विक की आवाज दी आपने, वो एक बार. हाँ, जॉन विक 1, 2, 3, 4 चारों में अलग अलग आर्टिस्ट ने आवाज दी अपनी. ओके. क्यों मुझे नहीं पता. आप एक बार करके बताओ ना, मुझे आवाज दी थी आपने, अगर याद हो.
लाइंस तो याद नहीं है. वो एक सीन है, आई लव दैट सीन, जहाँ पे वो ही गोज इनटू द. हाँ, तारीफ कर दो ना मेरे पॉडकास्ट की उस आवाज में. आपके पॉडकास्ट में बहुत मजा आ रहा है, आप बातें बहुत अच्छी करते हो. मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग 3 घंटे बैठे रहेंगे. Nice. हाँ, अहिरावण. अहिरावण. अब वो लेजेंड्स ऑफ हनुमान की बात करते हैं. लेजेंड्स ऑफ हनुमान की बात करोगे, ठीक है. लेजेंड्स ऑफ हनुमान में मैंने पहले वाली प्ले किया था. वो भी मेरा एक दोस्त है सुप्रीत सिंह, ही इज अ VFX गाय नाउ, इज बड़ी पोस्ट पे है. तो ही रेकमेंडेड माय नेम, ही सेड कि वो वॉइसिंग बहुत करता है, उसको ट्राई करो. व्हेन आई फर्स्ट आई प्लेड वाली, उसके बाद फिर बोले अहिरावण. मैं मैथोलॉजी बहुत फॉलो करता हूँ, मैंने कहा बट ये अहिरावण कौन है. तो मैं थोड़ा पढ़ा उसके बारे में, तो रियलाइज हुआ कि यार ये बड़ा लिटिल फिंगर टाइप रोल है. या People who've watched Game of Thrones, they probably understand the reference कि हाँ लिटिल हाँ हाँ हाँ, लिटिल फिंगर. अहिरावण रावण के भाई थे. सॉरी, भाई नहीं थे, बेटे थे, बड़े बेटे थे. हाँ, अहिरावण रावण के बड़े बेटे थे, जिनको लंका से देश निकाला दे दिया गया था बिकॉज ऑफ सम ऑफ द थिंग्स ही डिड. Technically, he should have been the next king of Lanka, but इंद्रजीत फेवरेट थे, तो इंद्रजीत से उनका बड़ा एक वो रहता था, लगाव नहीं, इंद्रजीत से सड़ते थे अहिरावण. ही वॉज द वन हु फाउंड आउट कि इंद्रजीत एक्चुअली इमॉर्टल नहीं है. वो एक गुफा में जाके एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ की मदद से जंग जीतते हैं. तो अहिरावण ने ताना मार दिया था कि क्या बात है, बिना यज्ञ के नहीं हो पाएगा क्या तुमसे. ईगो पे आ गई बात. ईगो पे आ गई बात. पर अहिरावण के बारे में एक बात ये है कि वो जेन्युइनली लंका के लोगों के बारे में बहुत कंसर्न थे. उनको लग रहा था कि उनके जो पिताजी हैं वो रास्ता भटक गए हैं. वो सीता माता से मिलने भी गए थे कि मैं देखूं तो सही वो कौन है जिनके पीछे हमारे पिताजी इतने बौखलाए हुए हैं. There's a conversation that happens with you'll hear it. अच्छा, देख लिया तुमने. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार. नहीं समझ में आता कि वो रावण के अगेंस्ट है या साथ है, क्योंकि वो ड्यूटी बाउंड है टू फाइट अगेंस्ट राम एंड लक्ष्मण, बट एट द सेम टाइम ही डजंट हैव एनी रिस्पेक्ट लेफ्ट फॉर रावण. वो ही सेज कि आपको नहीं करना चाहिए था ये. कहते हैं मैं जब आया लंका में तो चिताएं जल रही थी. ये वो लंका नहीं है जिसके लिए इतना एफर्ट लगाया था. ये वो सोने की लंका नहीं रही. लोगों की चीख पुकार का जवाब आपको देना पड़ेगा. बड़ा वैलिड कॉन्वर्सेशन था वो, द वन दैट ही हैड विद हिज फादर. ही सेड कि आप ये क्या कर रहे हो. सो टेक्निकली अहिरावण बड़ा लॉजिकल सा, बड़ा समझदार सा कैरेक्टर रहा है. ही गेट्स किल्ड बाय हनुमान इवेंचुअली. आएगा वो, ही गेट्स किल्ड बाय हनुमान. एनीवे, सो आप देखिए लेजेंड्स ऑफ हनुमान. Legends of Hanuman and hear my voice as Ahiravan. It's going to be fun, hopefully. And Wali season 1 में वाली भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार.